I hope you all are doing well. मैं आशा करता हूँ सभी सब लोग ठीक है. Past week, many of us were sick. Sick in a sense, it did not stop us to do the things which we are doing daily. लेकिन थोड़ा सा बीमार तो था, मैं भी बीमार तो था. थोड़ा शरीर में दर्द और काशी या स्नीजिंग, कुछ लोगों का तो आवाज भी बदल गए थे. लेकिन परमेश्वर ने हमें आज तक संभाला, चला के लेके आया. Just as we compare the pains that we have with the other people, those who are living here on the earth, the pains which we hold, there is nothing, isn't it? जो दर्द हमारे जीवन में है वो बाकी इस दुनिया में जीने वाले लोगों का जीवन से हम तुलना करके देखने का समय हमारा दर्द तो कुछ नहीं है. We all are good and sound. This is the testimony, the same testimony that I have. In the last week, God sustained me. परमेश्वर मुझे अच्छे से संभाला. And from the day of fasting prayer, the word that it provoked me to live like this, that two sentences like this. Even if I think I can't do anything, I can't increase or I can't decrease, so it is better I should not think. जो फास्टिंग और प्रेयर के समय से लेकर जो बातें मेरे मन में था, अगर मैं सोचा था कुछ बढ़ाना भी मुझसे नहीं होगा, कुछ कम करना भी मुझसे नहीं होगा. So I decided that let it be, let the will of God fulfill in my life. From past 3 years and from many years, there was one prayer request even in my house, at my house. मेरे घर पे भी एक प्रार्थना का विषय था. विश्वास के लिए सब कुछ छोड़कर, केरल से सब कुछ छोड़कर हम चले गए थे. वही विश्वास की वजह से पापा में एक प्रार्थना था, हम वापस केरल में आना है करके एक प्रार्थना था. And this is the week that prayer is going to fulfill. ये जो हफ्ता है मेरे सामने कल से लेकर, वो जो प्रार्थना मेरे मम्मा और पापा बहुत पहले से लेकर करते थे, वो प्रार्थना का पूर्ति हो चुका है, हो रहा है. And the beginning stage started from the travel of dear brother Michael. Michael का इधर से सफर शुरू हो गया 8:45 को. वो जो प्रार्थना था मेरे मम्मी और पापा का तो बहुत पहले से प्रार्थना था. मेरा प्रार्थना तो सिर्फ 3 साल से लेकर है, जब से लेकर मैं इधर आया, जैसे डानियल, शंभू और सब लोग इधर आने का समय से लेकर मेरा एक प्रार्थना था, मेरा माता और पिता केरल में आना है, वो भी इस सेवकाई की वजह से आना है. So that was in my mind as a prayer. And God is going to fulfill that, and I am happy. And I know that the enemy is working behind, and I know that I know one thing: enemy can't do anything. We will overcome everything because God is with me, or God is with us. If God is with us, who can stand against us? That is the word. And coming days, there will be many busy schedules, and we will pray together as we read in the Psalms 133, first verse. It is so good to see the brothers live in unity. And that I just want to speak some background things about one word from that psalm. And it is a heading that is written, the ascents of David. When David became king, or जब दाऊद ने राजा बना था, शायद maybe the background of this psalm speaks like every people from every tribe, they gathered together in Jerusalem. वो लोग जेरूशलेम में इकट्ठा होकर धन्यवाद और प्रार्थना कर रहा है दाऊद की वजह से. मतलब it is very very good to see when brothers live in unity. It is good for a godly person, but for evil it is not good. When brothers live in unity in Christ, the devil is worried a lot. Why? Because his plans are not going to fulfill. So make sure what are the things that happens in our life that we should not take it into heart, because we need support from each other in the coming days as we step into the ministry.
आने वाले दिनों में आप लोग की सेवकाई में जाएगा, आप एक दूसरों के बीच में एक अच्छा रिश्ता है तो यू कैन डू द मिशन ऑफ गॉड इन ए गुड मैनर इन योर विलेज। आपका गांव में आपके से इस परमेश्वर के सेवकाई को आगे आप लोग कर सकता है। लेकिन देयर आर टाइम्स इन आवर लाइफ वी हैव टू गो थ्रू सैड सिचुएशंस एंड हार्डशिप्स इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में निराश या दर्द का समय से जाने का समय भी है। And today as we came here, I just displayed one quotation here and one verse here. One part of the verse that is there in Matthew chapter 5 verse 13. क्या लिखा है? You are the salt of the. There was a time I used to read this verse and I used to meditate by thinking Jesus Christ told to his disciple, to me, to you, to everyone, we are the, or you are the salt of the earth. हिंदी में पढ़िए। तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम पृथ्वी के नमक हो। बस तुम पृथ्वी के। बहुत पुराना समय से लेकर मुझे ये वचन पता है, मैं ये वचन पढ़ता था, मुझे याद भी आया। लेकिन इस पिछला हफ्ता मेरा मन का अंदर एक नया सोच प्रभु ने लेके आया। वो बातें, वो मुद्दे पर मैंने आज आप लोगों के सामने क्लास लेना चाहता हूँ या प्रचार करना चाहता हूँ। So today for our meditation time or class time, and this is not the title. This is not the title. You are the salt of the earth, and so we are going to start our discussion from this quotation, from this verse, and while ending, we will end with a question which gives another meaning for this verse. ये वचन को दूसरी तरफ से भी हम सोच सकता है। प्रभु ने मुझे कुछ बातें इस वचन से सिखाया। So let's close our eyes and let's submit our body and our mind, our soul into God's hand। परमेश्वर, मैंने अभी कुछ समय ले, अभी 11:15 हो गया, 11:15 से लेकर 12:30 तक, 12:30 तक प्रभु मैंने आपकी वचन से सीखने के लिए जा रहा हूँ। अगर इस वचन मुझे बहुत खुशी या आनंद देने का वचन है तो आनंद देने पाए, लेकिन नहीं इस वचन मुझे दर्द देने का वचन है तो दर्द देने पाए। लेट्स प्रे लाइक दिस टू गॉड। लॉर्ड, आई एम गोइंग टू मेडिटेट, आई एम गोइंग टू लिसन फ्रॉम योर वर्ड, एंड इफ इट इज योर विल, लेट दिस वर्ड, let this meditation make me happy, or if it is your will and you want me to go through kind of pain because of this class or because of this meditation, I am accepting that। मैं प्रभु मेरे वो बातों को भी accept करता हूँ, क्योंकि आपकी जो वचन है प्रभु दो-धारी तलवार के समान है। अगर वो वचन मेरा हृदय पर आया तो, मेरे जीवन में आया तो मेरा जीवन ठीक हो जाएगा प्रभु। Lord, we submit ourselves into thy hand. We are going to spend some time in your presence meditating from your word. We all are brothers. We want to live in unity. There is nothing that can separate us from your love. Only because of your love today, myself and all these brothers are seated over here, sitting here. We did not do anything. We did not come and in search of you. You came in search of me. You came in search of us. You gathered us here in this class. And we submit our brothers, those who are back at home, wherever they attend today's worship. Let the word talk with them, Lord. Let the word encourage them, Lord. परमेश्वर, इस बातों को प्रभु मैंने आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। I greet you all in the mighty and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ। प्रभु मैंने पिता परमेश्वर यीशु मसीह का मधुर और मीठे नाम में, सामर्थ्यशाली नाम में मैंने आपको अभिवादन करता हूँ। For today's meditation, the key words I took that is already displayed here, Matthew chapter 5 verse 13, and it is written, you are the salt of the earth। Let's read Matthew chapter 5 verse 13, 14 and 15। आपके बीच में से किसी ने हिंदी में आवाज उठाकर इस वचन को पढ़िए। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस काम वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसकी कि बाहर फेंका जाए।
और मनुष्य के पैरों तले रोदा जाए। बस we know the context that comes under पहाड़ी उपदेश, sermon on the mount पहाड़ी उपदेश जो अध्याय 5 में है, वहाँ ये वचन आता है। यीशु मसीह ने चेला लोगों से बात कर रहा था, बात करते करते एक बहुत अच्छा बातें बोला, you are the salt of the earth. So I have already said, मैंने बोला था, हम इस क्लास समाप्त करने के समय we are going to think about this verse in a different way and we will end up by thinking in a different way. We will end up with a different thought in our mind. हम जब इस मेडिटेशन को समाप्त करेगा, हमारा मन में हमारा विचार इस वचन के बारे में आज तक कैसे था, उससे बदल कर उसको बदल कर और कुछ नया सोच में हम लैंडिंग हो जाएगा। In order to land, we need a departure. जो लोग एरोप्लेन में बैठा है, you know. In order to land somewhere, first we need departure तो जरूरत है। departure मतलब सफर शुरू किया तो कहाँ पर जाकर लैंडिंग कर सकता है। और today's short meditation, I would like to entitle our meditation as unexpected departure, a journey to east. I think you can see the heading very clearly. An unexpected departure, a journey to east. And what is the connection between Matthew chapter 5 verse 13 and this title? That is what we are going to do. When you read Matthew chapter 5 verse 13, the first part, you are the salt of the earth. What are the thought that came to your mind? आपके मन के अंदर कौन सा सोच आया होगा? इस वचन यीशु मसीह ने बोला, चेले लोगों से बोला, पहाड़ी उपदेश में है, मत्ती सुसमाचार में है, अध्याय 5 में है, अध्याय 5 का 13 में है, 13 का फर्स्ट पार्ट है। I hope all these thoughts came to your mind. Other than that, कुछ पुराना प्रचार या कुछ आपका मन में आया? Did you recall any of your old sermon or anything that related to that topic? You are the salt of the earth. Anybody thought about food? When we eat food, or especially those who live in North India, we need more salt, right? And केरल का जो खाना होता है कैसा लगता है हमको? नमक कम होता है, लेकिन इधर का लोगों के लिए वही बहुत है। For the people those who stay here, for them that is more than enough, but for us it is nothing. So we even thought about food. And in every food we need salt. चाय में कौन चाय डालता सॉल्ट डालता है? चाय में डालता है। You and I here from Jammu Kashmir, someone told me नमक टी, salt tea. वो हमारा सिर दर्द को कम करता है करके किसी ने बोल के मैंने सुना था। So almost in 99.5% in all food we need salt. And Jesus said to us, we are the salt of, and for everything, हर कामों के लिए लोगों को हमारे जरूरत है क्या? नमक जो है हर कामों के लिए जरूरत है। कभी कभी चोट पहुंचा तो भी हमारे शरीर पे हम क्या करता है? थोड़ा नमक लेकर, और नमक से दाम दो या तो कीड़ा है जल्दी मर जाएगा, वो भी सही है, क्योंकि जो टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है, तेरा टूथपेस्ट में क्या है? सो सॉल्ट, ये जो बात है कोई भी उनका जीवन से निकाल नहीं। क्या हम भी ऐसा है क्या कुछ लोगों के जीवन में हमको निकाला तो उनका दर्द आएगा? So this is not my topic or this is not my title, and my title is an unexpected departure. Let's go to the airport, that is Genesis chapter 13. Before that, Genesis chapter 13, chapter 11 verse 27. So हमारा एयरपोर्ट जो है डिपार्चर के लिए हम तैयार हो रहा है, सीट बेल्ट बांधकर, we are going to tie the seat belt, we are going to depart from one verse to another. So we were in Matthew chapter 5 verse 13. Suddenly उड़ के हम कहाँ गया? The first book of Old Testament, Genesis chapter 11 verse 27. Now these are the generations of Terah.
तेरा फादर अब्राम, Nahor, Haran, and Haran fathered Lot. Haran died in the presence of his father Terah in the land of his kindred, in Ur of the Chaldeans. So, this title, do you think we had one homework on this title? हमको इस टाइटल पर, इस प्लॉट पर एक होमवर्क था. I'm not going to ask how many of you did it, but tomorrow your presentation is there. So before that, I would like to give this presentation on the same title which I gave you, because in the last 1 week, I think from Tuesday, we have been hearing to one sentence repeatedly, two sentences repeatedly. क्या था वो? How many of you, कितने लोगों को दो sentence repeatedly आप लोग सुना? कितने लोगों को याद है? Anyone of you remembering? दो सेंटेंस दो बार आप लोग सुनना पड़ा. वो भी भूल गया. There is no compromise in academics, stated by dear brother Daniel, and one more thing. Who will open it? Stated by brother Amar Singh. So बाकी लोग भूल गया. You forgot this thing. You forgot. कितने लोग भूल गया था? So these were the two sentences repeatedly सुन रहा था. So I am sure that because of this sentence there was no negative effect here. No one lost nothing. ये जो sentence आने से कोई भी कुछ चीजों को खोया तो नहीं है, पाया तो है ज़्यादा. पाया तो बहुत पाया. Continuous classes था, continuous लिखने के लिए मिला था. Is there anyone who can say that मैंने बहुत कुछ खो गया ये दोनों sentence की वजह से करके? And you, I think you lost many things. रात को 8 बजे से लेकर 10 तक जो प्यारी और प्यारे से बातें होते थे, वो नहीं हो पाया होगा शायद. प्यारी और प्यारा मतलब माता पिता के बारे में भी बोल रहा हूँ, और कुछ नहीं. वो लोग हमारा loved ones है. You might have lost the talk which you used to have from 8 to 10 with your loved ones. Loved one means our parents. I did not mean anything. जाने को कुछ सोचो यार. And of course, I can say that we did not lose anything that belongs to the academics or spiritual matter. And in the last class, I gave you one assignment that was for the subject language and literature, I think. And I gave you a plot and I asked you to write a small story or small नहीं, two side में, एक कागज का दो side में, you have to use your language skill, you have to use your punctuation skill, punctuation mark और सब बातों को English grammar सब use करते हुए या हिंदी grammar सब use करते हुए एक ड्रामा या एक मूवी बनाने की जैसे स्क्रिप्ट को लिखने के लिए मैंने बातें दिया था. And today before I begin this section, I told you we all need each other. हम एक दूसरे की जरूरत है. आज हमारा दोनों का मुंह काला हुआ तो भी कल सफेद नहीं हुआ तो, क्योंकि वचन हमें एक बात बताता है, the word says that if you tie something here or there, कुछ चीज हम दुनिया पर बांधा तो स्वर्गराज में भी, if you are कुछ इस दुनिया पर बांधा तो स्वर्गराज में भी. ये भी यीशु मसीह ने बोला था बाई बाई लोगों का रास्ता का कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है नहीं? अगर ऐसे है तो हम इस दुनिया में किसी से नफरत रखकर लड़ाई करके घुमा तो ऊपर भी क्या हो जाएगा? वही है ना वचन का मतलब. And where two or people gather in my name, I will be. So wherever we gather, we have to think something. यीशु मसीह का नाम के लिए are we gathering to raise his name or are we gathered to raise our voice? These are the things we have to remember. And once again, an unexpected departure, a journey to east. East का हिंदी क्या है? East का हिंदी I don't even know in Malayalam, that's right. East का हिंदी. Even today, when I drive, when someone say to me, right or left, I get confusion. This is I am openly saying. अगर ड्राइविंग करने का समय किसी ने सार कभी डालिन सर बैठ के बोलते हैं हाँ राइट मोड़ो, मुझे कंफ्यूज होता है कि राइट कहाँ है लेफ्ट करता है. एक बात मैंने याद रखता हूँ, राइट अच्छा हाथ से कहा सकता है ओ, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट. ईस्ट हिंदी में क्या है? पश्चिम. पक्का? क्योंकि पूरा क्लास इस पश्चिम से चलेगा.
So an unexpected departure, a journey to east. Let's take one fellow, तेरा. जेनेसिस में एक व्यक्ति का नाम है तेरा. उनका 3 बेटे लोग था, अब्राम, नाहोर एंड हारान. वो लोग एक सफर शुरू किया. सफर कौन सी तरफ से शुरू किया? किस तरफ जा रहा है? कौन सी दिशा में जा रहा है? पूर्व में. सो वो लोग परिवार के साथ शुरू किया. उनका 13 का कितना बेटे लोग था, कितना संतान लोग था? अब्राहम नहीं, अब्राम, नाहोर एंड हारान. सो हारान का बेटा का नाम क्या था? लोत. हारान का भाई का नाम क्या था? हारान का भाई का नाम लोत है. अब्राहम है, नाहोर. सो लोग सफर शुरू किया. वर्स 28. Haran died in the presence of his father Terah, in the land of his kindred in Ur of the Chaldeans. And Abraham and Nahor took wives. The name of Abraham's wife was Sarai, and the name of Nahor's wife Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah and Iscah. Now Sarai was barren; she had no child. So अब्राहम का भाई 2 भाई लोग था, उसमें से हारान मर गया है. हारान का बेटा था लोत. So if you go and ask to Abraham, not Abraham, if you are going and asking अगर अब्राहम के पास जाकर पूछ रहा है ये लोत तेरे लिए कौन था, what will be his answer? He is my. मुझे ये रिश्ता का अंदर जो नाम आता है पता नहीं, इसलिए मुझे आप लोगों की मदद चाहिए. I already told we need each other. Even in प्रचार, even in class. अब्राहम के लिए लूत कौन था? नेफ्यू. वो मुझे इंग्लिश में पता है, हिंदी में क्या है? भतीजा. भतीजा मतलब रिश्ता याद है ना, मेरा बहन क्या या मेरा भाई का बेटा. भाई का बेटा या बहन का बेटा? सिर्फ भाई का बेटा. ठीक है. सो नेफ्यू. हम अब्राहम का या लोत का उम्र की देखा तो भी दोनों के बीच में बहुत बड़ा फर्क है. मैं काउंट करके नहीं बताने वाला था, क्योंकि अभी काउंट करने से बहुत सारा मोस्ट प्रोबेबली शायद करके बोलना होगा. इसलिए उम्र में कौन बड़ा है कौन छोटा है? अब्राहम बड़ा है. इतिहास में कहां पर मैंने पढ़ा था अराउंड 30 इयर्स का एज गैप था दोनों के बीच में, 30 साल का अराउंड. सो दोनों सफर कर रहा है. कमिंग टू वर्स 31. Terah took Abram his son and Lot the son of Haran his grandson. So Lot तेरा के लिए पोता, तेरा के लिए नॉट अब्राहम. अब्राहम का पिता के लिए लोत कौन है? पोता. सो पोता को लेकर लोत को लेकर और अब्राहम को भी लेकर उनका परिवार को भी लेकर तेरा में जा रहा है. कहां? द लैंड ऑफ कनान. हमको कुछ याद आता है कनान के बारे में बोलने के समय? क्या है वो? वाचा का देश. ये लोग कहां निकल पड़ा था? कनान तक जाने के लिए. और बट व्हेन दे केम टू हारान दे सेटल्ड देयर. सफर है, चलते चलते आज की जैसा गाड़ी कुछ नहीं था, तो सफर करते करते हारान में आकर क्या हो गया? But they came to Haran and they settled there. Verse 32. The days of Terah were 205 years and Terah died in Haran. हारान करके जगह पर कौन मर गया? तेरा कौन था? So coming to verse 12, in English Bible it is written the call of Abraham. Now the Lord said to Abraham, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. And I will make you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a. So ये सब कुछ होने के बाद अब्राहम को परमेश्वर का बुलाहट आता है. आकर परमेश्वर ने बोलता है मैं जो जगह दिखाने वाला हूँ उसकी ओर तो तेरा सफर को शुरू करना. Then verse 3. I will bless those who bless you. In the first part I am reading. So verse 4. So Abraham went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abraham was 75 years old when he departed from Haran. Haran से अब्राहम डिपार्चर होने का समय
टाइमिंग में कितना उम्र का था? 70. And Abraham took Sarai his wife, Lot his brother's son, and all their possessions they had gathered, and the people that they had acquired in Haran, and they set out to go to the land of Canaan. When they came to the land of Canaan, Abraham passed to the land to the place at Shechem to walk at Moreh. At the time the Canaanites were in the land. Verse 7. Then the Lord appeared to Abraham and said, to your offspring I will give this. कहाँ पहुंचने के बाद परमेश्वर ने अब्राहम से बोला, तेरे संतान को मैं एक जगह पे दूंगा। कनान में पहुंचने के बाद परमेश्वर ने बोला, तेरे संतान को मैं एक जगह को दूंगा। So when we read and study about the history of Israel, there was a promise to them. वाचा का देश कौन सा था? So ये जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम का समय में ही बोला था, पहली वाचा ये था, I will give you offspring, मैं तुझको संतान के दूंगा, तो गिनती भी नहीं। सेकंड बात जो बोला था, ये जगह पर कहाँ पहुंचने के बाद, कनान में पहुंचने के बाद क्या बोला, ये जगह को मैंने तेरा संतान के लिए दूंगा। इतना तक कि तुम लोगों को कहानी समझ नहीं है, क्योंकि पूरा एपिसोड एक समझ के आया। तो पहले जो वचन हमने लिया था कहाँ का था? मत्ती अध्याय 5 का, you are the salt of the earth, or I am the salt. So coming to verse 10, both of them, there was a famine in the land, so they went to Egypt. So while going to Egypt, एक परेशानी बात है। अब्राहम ने बीवी से बोला, इजिप्ट का फिरौन जो राजा लोग, तू तो बहुत सुंदर लड़की तो है, बच्चा तो नहीं है दोनों का अभी तक। सो वहां जाने के बाद they will capture you and they will kill me for my sake, for my life। मैं क्या बताऊंगा, तू मेरा सिस्टर है। सो फिरौन है और फिरौन का मंत्री लोग, they saw Sarah is very beautiful, so they captured her, took her to the Mahal palace। और परमेश्वर ने क्या किया वहां? वचन 15, वचन 16, and for her sake he dealt with Abraham। And coming to verse 17, chapter 12 verse 17, but the Lord afflicted Pharaoh and his house with a great plague because of Sarai, and अब्राहम का पत्नी थी। सो राजा ने अगर अब्राहम से क्या बोला, तू क्या करके बैठा है, तूने एक झूठ बोलने से हमारे घर पे, हमारे महल में परमेश्वर का दंड व्याधि, प्लेग मतलब व्याधि है ना, व्याधि आया करके उसके बाद छोड़ दिया और उनके पास से रखा, छोड़ दिया, वापस दे दिया। कमिंग टू वर्स चैप्टर 13, हियर देखना है अच्छा से, अब्राहम के लिए एक नेफ्यू है, भतीजा है। when they started journey, his father told him, we will take them also, क्योंकि लूत का पिता को क्या हो गया था, वो मर गया था। So when I was thinking the relationship they had, for Abraham, Lot is almost like his son only, क्योंकि उम्र में भी छोटा है, अब्राहम बड़ा है। even though in relationship they are his nephew, भतीजा के समान है, लेकिन हर जगह पर इनको लेके ही, हर जगह पर हर सोच में लूत का जीवन में ठीक होना करके कौन सोचता था। लेकिन सफर आगे बढ़ते गया, अब्राहम का भी धन दौलत संपत्ति बढ़ते गया। इवन द प्रॉपर्टी एंड द एसेट्स व्हिच अब्राहम हैड, इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग एंड a day came in chapter 13। पढ़िए, चैप्टर का पहली वचन हिंदी में पढ़िए। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिया। In every verse it is written, wherever he went, whatever he took Lot also। कहाँ पे भी गया, कुछ भी लिया, लास्ट में वचन में अंध होता है, उन्होंने लोत को भी। मैंने इसलिए बोला उन दोनों का रिश्ता बहुत गहरा रिश्ता था। Both of them were in good relation, not only a nephew but his brother's son। अगर मेरा पापा के लिए, मेरा पापा का भाई का बेटी या बेटा कैसे है, एक बेटा और बेटी का समान ही है। आपका पिता के लिए भी आपका, आप जैसा है, आपकी जैसे होगा आपका भाई का बेटा भी, है नहीं। अगर आपका भाई का, आपका पिता का भाई कुछ लोग मर गया तो भी हमारा पिता लोग क्या करते हैं, उनको संभालते हुए, बड़ा करते हुए
उनका शादी करवाते हुए उनके भलाई के लिए सोचता है। एंड ऑफ कोर्स देयर आर सम बैड पीपल आल्सो, बट मोस्टली दैट विल बी इन आवर माइंड। हम उनके लिए ख्याल रखते हुए संभालता है। द सेम वे वेयरएवर अब्राहम वेंट, कहां-कहां अब्राहम ने गया, किसको भी साथ लेके गया। देखिए परमेश्वर का दो वाचा तो उनके जीवन में था, मैं तेरे संतान को बढ़ाऊंगा, तारा के समान, चांद के समान, ये सब कुछ है। फिर भी अब्राहम और सारा को कोई संतान। अभी हारान को छोड़ने का समय अब्राहम ऑलरेडी 75 है, तब मिला वाचा है नहीं, प्रॉमिस व्हेन ही गॉट when he was in the age of 75 when he left Haran। उसके बाद आगे आते आते अध्याय 13 में लोत को फिर भी लेके जा रहा है। बट कभी-कभी what do you mean by success? जीवन में सक्सेस होने का मतलब क्या है? According to the movies which we used to watch, हीरो को सब कुछ होगा, he will be wealthy enough, he will be happy, a big house, 2-3 cars and everything। वो सक्सेस है ना दुनिया की तरफ से। दुनिया की तरफ से सक्सेस क्या है? Whom you will point and say he is a successful man? Enough पैसा है, धन दौलत है, नाम मत लेना, बहुत लोग हैं। So that is the definition of success which we will give when we think in a worldly way. So Abraham ऐसे ही था। Abraham had everything. He had everything. उनका बैल बकरियों को, उनका प्रॉपर्टी को रखने के लिए जो जगह पर ये लोग था, वहां जमीन का कमी भी था। There was not enough place where they used to live in order to keep all his flocks and all his property and assets, all his materials, all his things. A day came, coming to chapter 13 verse 2, पढ़िए। Now Abraham was very rich in livestock. Now Abraham was very rich. According to God, he was very successful man. Then in livestock, in silver, in gold. And he journeyed on from the Negev as far as Bethel to the place where he tented. So now he is traveling to a place where he कहा उन्होंने एक परमेश्वर के लिए एक टेंट बनाया था। परमेश्वर के लिए क्या उसका हिंदी क्या है? नहीं, टेंट का हिंदी तंबू। वहां वापस जाते हुए अब्राहम का अपना देखा कहां? बेतेल और ए के बीच में है, और जगह का नाम क्या है? वर्स 4। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। So लूत अब्राहम के साथ साथ चलता था, उनको भी क्या क्या था करके लिखा। He was also very rich। इधर से लेकर कहानी रिश्ता में कुछ अनएक्सपेक्टेड बातें आने वाला है। So Abraham never thought because of this successful life, because of this rich life, I have to ask my nephew to go away। So what happened one day? अब्राहम का काम का लोग, अब्राहम के घर पे काम करने वाले लोग, लूत का सेवक लोग, दोनों का बीच में लड़ाई हो गई। What was the reason for लड़ाई? लड़ाई होने का रीजन क्या था? माइक बंद करके रखना जब नहीं पड़ता है। So अब्राहम का सेवक लोगों के बीच में, लूत का सेवक लोगों के बीच में एक फाइट होने वाला है। फाइट का रीजन सब कुछ नहीं है इसलिए फाइट नहीं हुआ, सब कुछ है इसलिए हुआ। So how can we define the word success? If we have everything, we can live peacefully. They had everything, but no peaceful life। उनको दोनों के जीवन में सब कुछ था, फिर भी एक समाधान शांति का जीवन। So what Abraham did? Chapter 13 verse 8। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और मेरे 20 तेरे तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे 20 और तेरे सर्वों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम तेरे लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे। So when we study about the life of Abraham and Lot, one thing we can understand, there is a person who is traveling with the word of God,
there is a person who is traveling because someone asked him to come and he is traveling. Who is that? Lot. अब्राहम को परमेश्वर ने बोला चलने के लिए, इसलिए उन्होंने चल रहा है। लोत को अब्राहम ने लेके चल रहा है, अब्राहम ने बुलाकर लेके चल रहा है। दोनों, मैंने कुछ गलत बोला? Or do we find any verse which God says to Lot, you also go with him? So अब्राहम ऐसा एक सोच वाला व्यक्ति था, वो मेरा भतीजा है, he is my nephew. Wherever I will go, I will take him, I will support him, and I will think about his successful life only. वचन अध्याय 13 में chapter 13 वो fulfillment हो गया. So both of them had enough livestock and they are living in a good manner. Suddenly a small fight came in between the laborers or the servants of Abraham and Lot. So what Abraham thought, ये चीज हमारा बीच में कुछ लड़ा, मतलब हमारा रिश्ता को तोड़ने के लिए नहीं बनना है करके अब्राहम ने लूत से बोला। Verse 13, verse 9, it is not the old land before you, separate yourself from me. So there is a time when Abraham said to Lot, तेरा आंखों के सामने जमीन तो देख रहा है, अभी मुझसे तो सेपरेट होने है तो हो सकता है। then पढ़िए, if you take the left hand then I will go to the right. अब्राहम लूत से बोला तू लेफ्ट हैंड का जमीन ले लिया तो मैं राइट हैंड का और चले जाता हूँ। then and verse 10, and Lot lifted up his eyes and saw the Jordan valley as well as watered everywhere like the garden of the Lord, like the land of Egypt, the direction of Zoar. This was the मतलब लोत ने उनका नजर उठाकर देखा, ऐसे जमीन उनको दिखाई दिया। वहां लिखा है वो जमीन को देखा तो परमेश्वर का वाटिका का समान था। परमेश्वर का वाटिका था, कौन सा था? गार्डन ऑफ। तो उनका वो जमीन वैसे ही दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत निर्णय ले लिया, मैं कहां कौन सी जमीन पर जाके जीता हूं। आगे वचन पढ़िए, वर्स 11। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी चराई को सुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा और लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा। और अब्राहम तो कनान के देश में ही रुक गया। तो लोत ने कहां चले गया? अनएक्सपेक्टेड डिपार्चर आ गया and his journey is to east. वहां ईस्ट लिखा है ना, पश्चिम, पूर्व। पढ़िए वर्स 12 once again. Abraham settled in the land of Canaan while Lot settled among the cities of the valley and moved his tent as far as Sodom. Sodom का एक पैर मिसिंग है इधर, गोमेर। So लोत ने जमीन को देखा, बहुत आशीष पाई हुई जमीन है, मैं जाकर इधर रुका तो मेरे लिए जिंदगी। Abraham, he started his journey with the word of God. So for him, wherever he go, that land will be blessed. इसका मास्टर साउंड थोड़ा कम किया तो हो जाएगा। So for Abraham, wherever he goes, that land will be blessed through Abraham. That was the call. But for Lot, that is not the matter. He chose a land where he saw already आशीष पाया है। So दोनों के सफर में तो फर्क तो है, दोनों का नजर, दोनों का सोच विचार में फर्क तो जर्नी टुगेदर था, दोनों का जर्नी सफर एक साथ था, पर दोनों का सोच विचार में, अब्राहम का सोच विचार में wherever I go, that land will be blessed through. That was the covenant God made with. I will bless the nations through you. That was not the matter with Lot. So Lot ने ऊंचा करके देखा तो ऐसा देखा तो जमीन तो दिखाई दिया, बहुत आशीष पाया है। वहां लिखा है उन्होंने उनका टेंट को, उनके घर को सोदम करके शहर की ओर तोड़ा, क्योंकि बहुत अच्छा शहर जैसे दिखाई दिया, बहुत वेल डेवलप्ड सिटी था। So already राजाओं का समय हो गया था। जो when we read from chapter 7 onwards, when you read and come, you will find out. When we come to 14, you will find in the day of Amapran, the king of Shinar करके राजा लोग भी था। ऐसा मत सोचो ये राजा लोगों का समय हुआ है,
वहां शमूएल के समय से लेकर नहीं, उसके पहले लेकर था। सो लोत को ऐसा लगा ऑलरेडी आशीष पाई हुई जगह पे गया तो मेरी जिंदगी। सो दिस इज समथिंग वी आल्सो थिंक when we fall into some kind of situations, ऑलरेडी बनाए हुए असाइनमेंट मिला तो हमारे लिए तो खुशी की बात है नहीं? क्यों फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं हमारा कॉन्टेक्स्ट से बता रहा हूं, मेरा भी ऐसे ही था ऑलरेडी। उदाहरण, मैंने एक व्यक्ति के बारे में और एक पास्टर से बात कर रहा था, मैंने बोला उनका 2 बहन लोग है, एक भाई है, एक लड़का है, घर पे हमेशा बोलता है बड़ा लड़का है बड़ा लड़का है करके। उनका पढ़ाई के बाद आप उनको कहां पर एक सेवक के लिए मौका मिला दिया तो अच्छा था करके बोल रहा था। तो वो पास्टर ने बोला मैंने उनको एक बाइक दूंगा, और उनको मैंने ऑलरेडी विश्वासी लोग है कलीसिया 100 लोगों का कलीसिया है, 100 लोगों का कलीसिया का सौंप दूंगा, और उनका रहने के लिए घर, और उनका शादी के बाद कैसा है ऐसा बातें मुझे बोला। मैंने आकर वो कहानी आप लोगों को आज बताया। कुछ लोग सोचा ये मेरा परिवार के बारे में होगा, मेरे लिए तो अच्छा है, अच्छा ही है ना। If you get a church with 100 people, if you get a college with 100 people to teach, or if you get something already prepared, किसी ने ना बोलता है, Do you think that you will say no? So लोथ का मन का अंदर यही ऐसा एक छोटा सोच था, ऑलरेडी डेवलप्ड सिटी है, उसकी और उसकी और। Then next verse 15. For all the land that you for the Lord said to Abraham, and Lot had separated from him, lift up your eyes and look from the place where you are, northward and southward and eastward and westward. For all the land that you see I will give to you and your offspring forever. I will make your offspring as the dust on the earth. पहला कैसे बोला? Dust on the earth. Then, so that if you can count the dust on the earth, your offspring also be counted. अगर इस धरती का मिट्टी को तू गिनती कर सकता तो वैसा मैं तेरा संतान को दूंगा। Then क्या बोला? Verse 17. Arise, walk through the land, walk through length and the breadth of the land, and I will give it to you. So Abraham moved his tent and came to settle by the oaks of Mamre, which are at Hebron, and there he built an altar to the। दोनों ने उसका टेंट को मूव कर रहा है। लोत ने टेंट को कहां मूव किया? सोदम की ओर। अब्राहम ने टेंट को कहां मूव किया? मामरे, which means हेब्रोन की ओर। और आगे पढ़िए, chapter 14 verse 1 to 3. So mostly the explanation I am giving already it is there in the verses, so it is very easy for you to understand. So we are going to study the truth what we can learn from these verses, or this portion. Chapter 14 का पहला 3 वचन पढ़िए। सिनार के राजा अम्रापेल और एलिसार के राजा अरियोक और एलाम के राजा कदोलिया ओमेर और गोइम के राजा तीदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरसा और आदमा के राजा सिनाब और सबोयम के राजा समेबेर और बेला जो सोआर भी कहलाता है, इन राजाओं के युद्ध किया। इन 500 ने सिद्दीम नामक तराई में जो खारे ताल के पास है एका किया। 12 वर्ष तक ये 12 वर्ष तो ये कदोस में के अधीन रहे, पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध विद्रोह किया। 14वें वर्ष में कदोलियम में और उसके संगीत राजा आए। बस। So when I ask you to read it, there you will see many kings and their names. So Lot moved his tent to Sodom, where already the development took place. यहाँ already विकसन हो गया था शहर में। Then Abraham moved his tent to Hebron, and in chapter 14 you will read many kings and their names and their places. And verse 8 you will read that the king of Sodom and king of Gomorrah and the king of Admah, the king of Zeboim and the king of Bela
went out and they joined back in the valley of Shittim. But what happened? लोत ने उनका घर सोदम की ओर अच्छा होगा करके गया था। वहां युद्ध हो रहा है, युद्ध होने की वजह से even that is written in verse 13. पढ़िए। Then one who had escaped came and told Abraham, the Hebrew, who was living in the oaks of Mamre the Amorite, brother of Eshcol and of Aner. These were allies of Abraham. When Abraham heard these kinsmen have been in captive, अब्राहम को एक व्यक्ति ने अगर एक बात बताया, तेरा नेफ्यू को भी वो राजा लोग सोदम को हराते हुए पकड़ के लेके गया। Then 318 लोगों को इकट्ठा करते हुए Abraham went and fought with them, and he brought back his nephew and what all the things that were belongs to him, what all the things they captured, he brought back everything. लोत को वो लोग कब्जा किया करके अब्राहम ने सुनकर अब्राहम ने क्या किया? लोत को भी और उनके सारी सामान को वापस, वहां लिखा है 318 लोग थे अब्राहम के साथ। जैसे सोचा था गुंडा लोग था शायद, बहुत जिम बॉडी करने वाला लोग था। ले जाकर मेरे नेफ्यू को, भतीजा को भी और उनका कितना सामान लिया सबको वापस लेके आया। ये लेके आने से वहां मलकीसदेक का कहानी है, महापुरोहित है। मलकीसदेक को जो देना है अब्राहम ने दे दिया। उसके बाद वहां सोदम का राजा था। सोदम के राजा ने अगर अब्राहम से बोला मैं भी कुछ देर तुझको दूंगा, अब्राहम ने बोला नहीं चाहिए, आज मैंने तुझसे ये कुछ बातें लिया तो that verse 20 onwards it is written. So if आज मैंने तेरे हाथों से कुछ मदद लिया तो आने वाला दिनों में तू क्या बताएगा? मेरी मदद की वजह से मैं ये बंदा आशीष। अब्राहम ने मना कर दिया। कमिंग टू अध्याय 15. So we travel a long from the title. Title क्या था? Unexpected. What was the unexpected departure that happened in the life of Abraham? He never thought because of the health, because of all these blessings, because of all the properties and assets and all these things, he had to leave his nephew. So that was an unexpected thing that happened in the life of Abraham, but he did it in a wise manner and he took a decision and he stayed in the land of Canaan and he moved his tent to Hebron while Lot moved his tent to, and in nowhere I read that Lot came back to Abraham. कहाँ पे भी आप लोग पढ़ा? लोत ने युद्ध में हारने के बाद भी, वापस लेके आने के बाद भी अब्राहम के पास नहीं। So they were living in a different way. So in chapter 15 you will see God's covenant with Abraham, 15 verse 13. अब्राहम का डाउट ये था, गॉड यू हैव ऑलरेडी प्रॉमिस्ड मी दैट मेरा संतान को बढ़ाएगा। संतान तो नहीं है, मैं किसको? एलियासर जो है उनको मैं धन दौलत दूंगा। परमेश्वर ने 13 वचन में क्या बोला? नहीं, मैं तुझको संतान को दूंगा करके बोला था। जरूर I will give you, I will fulfill. Coming to chapter 16, then सारे का एक एपिसोड है पूरा। सारे का एक एपिसोड है चैप्टर 16। Coming to 16 verse 7, पढ़िए। हागर का भी एक एपिसोड है। तो हम डिपार्चर होकर हवा में उठने का बातें शुरू कर अभी बहुत कहानी से आया। I hope you are following. I hope you are with me in the all this episode. Imagine करके बैठना ये लोग अभी क्या क्या कर रहा है। So हागर को भी घर से निकाल दिया, परमेश्वर उनके लिए भी रास्ता को खोला। और coming to verse 8, and he said, Hagar, servant of Sarai, while you have come from where you are going, she said, I am fleeing from my mistress Sarai. So ये सब बातें एंजल ने सारे से हागर से बातें किया। Then coming to verse 17, सर्कमसिशन का कुछ बातें हैं। देन इसहाक का जन्म, अध्याय 17 वर्ष 15, मतलब इसहाक का जन्म के बारे में एक प्रॉमिस मिला। देन कमिंग टू चैप्टर 18, इवन टुडे वेयर लोत इज लिविंग, लोत कहाँ जी रहा है? अभी सोदम और गोमेरा शहर में उस दिन तक कितना नशे, कितना पाप वो लोग कर रहा था, वो बढ़ते गया। सोदम में साथ गोमेरे में दोनों जगह पर the same mistake they were doing,
and all these things were under the vision of heavenly Father. परमेश्वर की नजर में ये सब बातें था. So he was waiting. Coming to chapter 18 verse 1 पढ़िए. अब्राहम ममरे के 5 वर्षों के 20 कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था. तब यहोवा ने उससे दर्शन दिया. उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं. तो जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर अब्राहम को परमेश्वर का दूत ने दिखाई दिया. परमेश्वर का दूत दिखा देकर कुछ बातें बोला. उसके बाद सारे के बारे में वहां लिखा है. सारे के बारे में लिखने के बाद कमिंग टू 12 सारे ने ये बात सुनकर हंसा था, लेकिन मैं हंसा करके बोलने के लिए भी ताकत हिम्मत उसको नहीं थी. देन कमिंग टू वर्स 22 हियर हमारा मेन एपिसोड, मेन कंक्लूजन, मेन बातें है. सो इन वर्स 22 चैप्टर 18 वर्स 22 इट इज रिटन सोदम और गोमेरा, ये जो शहर था इतना बिगड़ गया था. परमेश्वर ने एक निर्णय ले लिया, मैंने इन लोगों को न्याय करूं, दंड लेके आऊं. ये बातें लूत को नहीं बताया. किसको बताया? When God spoke to Abraham, अब्राहम ने 5 बार कुछ बातें बोला. पहला बोला 50 लोग, फिर 40 लोग, फिर 30 लोग, फिर 20 लोग. अगर परमेश्वर 10 लोग है तो क्या आप धर्मी व्यक्ति को भी इस न्याय में जलाएगा क्या? God, are you going to judge even the righteous people? Then God said, yes, तूने जो बातें बताता है, आपने जो बातें बताता है, अगर 10 लोग, लास्ट वाला बातें बताता हूँ, chapter 18 verse 33, even if there is 10 people who are living in a good manner, I will not do anything to them. But there was none. But Lot पाप की जगह में जी रहा है. He was living in that village, even in the city, even though that was his situation. But उन्होंने ये सब बातें देखते हुए दुख तो होता था, लेकिन वो बातों को छोड़ना भी नहीं होता था. सो वो बातों को छोड़ना भी नहीं होता था, साथ ही साथ वहां से निकल के आना भी, क्योंकि खुद की मर्जी के अनुसार जाकर जमीन लिया था. खुद की मर्जी के अनुसार जाकर जमीन लिया था. कभी कभी हम भी खुद की मर्जी के अनुसार कुछ निर्णय लेकर चले जाता है, फिर वापस मुड़ के देखा तो इधर गरीबी है, वहां अमीरपन है, मतलब वहां कुछ ही है. वापस जाना है तो भी, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी गो थ्रू द उड़ाव पुत्र का कहानी में वापस आने का मन तो था, लेकिन he was thinking मैं ही छोड़ के आया था, अभी मैं ही वापस गया तो फिर भी इज्जत का बात तो है. So how can I? So शायद मैं मेरा इमेजिनेशन डाल के बोल रहा हूँ, बोल के बता रहा हूँ, it is my imagination. शायद लूत ने वो शहर में इतना नशा सब कुछ करते थे. One of the main biggest or not biggest, one of the thing they used to do, आज का कॉन्टेक्स्ट में भी है, लड़का लड़का का शादी. ऐसा वाला चीज भी सोदम और गोमेरा में होता था. उसके बीच में कौन रहता है? So it is written in the verse, ये जो लूत ने वो शहर का मेन गेट के सामने बैठता था, बैठकर सोच में था मैं क्या करूं, अभी सिटी तो ऐसा बिगड़ गया. एंड आई थिंक समवेयर ही अंडरस्टूड दैट दिस इज नॉट द प्लेस आई शुड लीव. कहां ना कहां एक जगह पर उनको समझ आ गया होगा ये जो जगह में रहने का जगह नहीं है. ऐसा एक दिन उनको भी, अध्याय 19 वर्स 4, उनके सामने भी परमेश्वर का दूत आकर खड़ा हुआ. लूत ने बोला इधर खड़ा मत हो जाओ, जल्दी मेरे घर पे आओ, खाना खाकर रेस्ट लेंगे. Why? Because he know if there is any outsider entering into that city, वो outsider को भी सीधा इन्हें बोल के बताया तो उनको भी पकड़कर लड़का लड़का को रेप करते थे, अत्याचार करते थे. इसलिए लोग ने बोला इधर खड़ा होना अच्छा नहीं है. दूध लोग ने क्या बोला, हम आज रात इस शहर में घूमने के लिए आया. लोग ने क्या बोला, व्हाट लोग से, नो 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 नो, कम टू माय होम. सो ही टुक देम टू होम एंड नाउ दे आर एट होम. ये बात है बाहर का लोगों को समझ आ गया. सो वहां का जवान लोग सब लोग आकर लोग का दरवाजा खटखटा रहा है. क्यों? ये जो गेस्ट लोगों को बाहर भेजो, हम उसका ऊपर बलात्कार अत्याचार
करेंगे। कभी कभी हम इस वचन पढ़ने के समय पवित्र वचन में ऐसे वाला बातें लिखा है करके समझ आते हैं, सोच आता है, लेकिन we are also living in the same context, right? इंसान बदल गया होगा, कॉन्टेक्स्ट कभी नहीं, कॉन्टेक्स्ट का स्टाइल बदला होगा, कपड़ा या मोबाइल सब कुछ जमाना में मतलब डेवलपमेंट हुआ होगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट तो लोत ने क्या बोला, मैंने इन दोनों को नहीं दूंगा, मेरा जो बेटियां है मैंने उनको तेरे तुम लोगों को दूंगा, और लोग क्या बोल दिया, नो वी डोंट वांट। ऑन द स्पॉट द एंजल सेड, एंजल्स ने क्या बोला, बाहर खड़ा हुआ लोगों का आंख अंधा हो गया, सो दे स्टार्टेड बीटिंग अराउंड द बुश करके हम बोलते इधर उधर डगमगाने लगे क्योंकि आंख में रोशनी नहीं है। सो लोग जो खुद की मर्जी के अनुसार गया था, अभी ऐसे एक संदर्भ में है, खुद की घर से बाहर निकलना भी नहीं हो रहा है। वही because of the sin, because of the sinful nature, the people of that land is holding to, but the angel spoke to him, we are here to do a judgment on this land because people are doing because the things which they are not supposed to do। लोग जो बातें नहीं करने का था वो पाप करने से हम इधर आए हैं इस जगह पर जजमेंट करने के लिए। अगर तुझको कुछ बातें लेने का है तो लेकर आज ही अभी ही, जैसे कौन किसको बोला, दूध स्वर्गदूत ने लोत से बोला, लोत ने तुरंत याद रखा, अरे मेरा दो बेटियों के लिए दो लड़का को हमने देख के रखा था। लोत ने भाग कर शादी हुआ तो उनके लिए क्या हो जाए, दामाद, दो दामाद लोगों के पास जाकर बोला ऐसा होने वाला है। वो लोग क्या बोला, ये तो पागल हो गया, हम इसका बात क्यों विश्वास करना है। They did not come, but स्वर्गदूत ने बोला तेरा घराना पत्नी दो बेटियां लेकर, but there was one condition, you are leaving this place, you choose this place because you like this place, but you are leaving this place even though you don't want to leave। वहां नहीं बताया, मैं संदर्भ से बता रहा हूँ। लूत से स्वर्गदूत ने ऐसा बोला, बोले का मतलब ऐसा आया होगा, तूने इस जगह को पसंद किया इसलिए आकर रुका था इधर, बट अभी तो इस जगह को छोड़ना है, मन नहीं है तो भी। So they started their traveling again an unexpected departure। लूत ने सोचा डेवलपमेंट सिटी में क्यों जाकर जिंदगी भर रुकना शुरू किया। Why he went to that city and why he started living there, kind of settlement only, but again an unexpected, पहले अब्राहम के जीवन में हुआ था अनएक्सपेक्टेड डिपार्चर, उसमें लूत खुद का नेफ्यू दूर हो गया, फिर नेफ्यू को किसी ने पकड़ के लेके गया, फिर जाकर मदद किया था। उसके बाद नेफ्यू ऐसे दुख में बैठा है, स्वर्गदूत आकर और कुछ बोला, अभी लूत का जीवन में अनएक्सपेक्टेड डिपार्चर, टाइटल में कनेक्ट तो है। सो अनएक्सपेक्टेड डिपार्चर इन द लाइफ ऑफ लूत। सो नाउ अगेन जर्नी स्टार्टेड। Read 19 verse 14. So Lot went out and said to his son-in-law who were to marry his daughters, up, get out of this place, for this land is about to destroy the city। The Lord is about to destroy the city, but वो लोग विश्वास नहीं किया। But in verse 16, so the men seized him and his wife and his daughters by the hand, the Lord being merciful to him, and they brought them out of and set them out of the city। वहां वचन लिखा है, स्वर्गदूत ने इन लोगों को पकड़कर जबरदस्ती से शहर का बाहर निकाला। I was thinking there was a person who was praying for this fellow. Who will be that person? He might be praying, Lord, तूने सोदम और गोमेरा को नष्ट करने के लिए जा रहा है। 50 बार कुछ बोला था, मैं ये सोच रहा था किसकी याद में बोला होगा, वहां कौन रहता है। So even if you imagine, it has some connection। मेरा नेफ्यू जिसको मैंने प्यार रखता था, खुद की मर्जी के अनुसार जाकर कहाँ रहता है अभी। So Lord, अगर 10 लोग हैं तो I think परमेश्वर ने अब्राहम के मन को बहुत अच्छा से समझ लिया। So he gave a chance to 4 people who are there, लूत, पत्नी और 2
वहां लिखा है इन वर्स 16, स्वर्गदूत ने उन लोगों को सीज किया. व्हाट इज मीन बाय द वर्ड सीज? एंड ब्रॉट देम आउट ऑफ द सीज के मतलब कब्जा किया. कुछ भी जगह पर हमको भी निकाल ले तो परमेश्वर को क्या करना पड़ेगा? कब्जा ही करना पड़ेगा. सो परमेश्वर उन लोगों को सीज किया, कब्जा कर शहर का बाहर निकाला. वर्स 17, as they brought them out, one said, escape for your life, do not look back, stop anywhere in the valley. So command था, condition क्या था? It is I who brought you out of this land, and there is a command. Now forever and ever, do not turn back to your old life where you thought that those things are the blessing that you need in your life. वचन को नहीं बताया, वचन का मीनिंग को बताया. कभी कभी हम भी कुछ चीजें मेरे लिए आशीर्वाद का है, ब्लेसिंग है करके चले जाता है, वहां ऐसा फंस जाता है हम लोथ के समान. आने का मन भी है, नहीं आ पा रहा है, जाने का से बात सीधा भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि some belongings are there in this land also. कुछ चीजें मेरा कुछ चीजें इधर भी पड़ा है, लेकर चलना बहुत जाने का बात में नहीं होगी, इज्जत की बात है. I took the decision to come here. कभी कभी मैं बताता हूँ, बाइबल कॉलेज में आने का सीजन भी ऐसे ही होगा. कभी कभी डिसीजन लेकर we will step into बाइबल कॉलेज. Then if you go back to your village, your church pastor will say, देखो बाइबल कॉलेज में गया, कुछ गलत किया, सारा ही निकाल दिया, फिर आके बोलता है मैंने खुद आ गया. मैं मेरा अनुभव बताता हूँ, मैं मेरा अनुभव ही बता रहा हूँ. Those who enter into a life of Bible college seminary, these are the thing. If we go back, people will say, परमेश्वर का बुलाहट पे छोड़ के निकला है, इनकी वजह से हमारा नाम पे भी आंधी तूफान. तब खुद बोलने का ताकत तो होना पड़ेगा, योना के समान, मुझको निकाल दो. But here the situation of Lot, परमेश्वर का दूत उनको शहर के बाहर निकालकर एक बातें बोला, क्या नहीं करना. Now Lot understood this very well. लेकिन बाकी 3 लोग में से या बाकी 3 लोग कहाँ जी रहा था, कहाँ जीने वाला व्यक्ति लोग था, आधार कार्ड कहाँ का था. They were living in a context where they are seeing all the sinful thing, all the wrong things, wrong deeds with their naked eyes. उनका नंगा आंखों से वहां चलने वाला सारी गलत चीजों को 2 बेटी लोग भी देखा है, खुद का वाइफ भी देखा है. सो साथ ही साथ वहां इनकी घर पे बहुत सारा चीज भी था, इनका है करके प्रॉपर्टी था. तो चलना शुरू कर दिया. रीड वर्स 20. Verse 19, behold, your servant has found favor in your sight. You have shown me great kindness in saving my life, but I cannot escape to the hills. सर्वदूत ने बोला वो पहाड़ की ओर, लोथ ने बोला पहाड़ की ओर नहीं, मैंने एक जगह पे जाता हूँ, वो जगह का नाम है जोआर, ZOAR, which means small, which means छोटा, small in meaning. So सर्वदूत ने बोला ठीक है, तो वहां ही चले जाना, लेकिन कंडीशन क्या है, पीछे मत, पीछे मुड़ा तो. So read verse 22. Escape there quickly. I can do nothing till you arrive there. Therefore the name of the city was called Zoar, small. करके जगह पर लोग चले गया, लेकिन एक बात हो गया था. Read verse 23. लूत के सोवर के निकट पहुंचने ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ. तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और गमोरा पर आकाश से गंधन और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों. बात ये है, स्वर्गदूत ने लोथ को परिवार को शहर से निकाल के बोला था गो टू दैट हिल्स. हिल मतलब भी चढ़ के जाना है वहां, मेहनत का काम तो है. दैट इज रिटन इन वर्स 17. Do not look back or stop anywhere in the valley. Escape to the hills. But लोथ ने क्या बोला, हिल्स की ओर नहीं, पहाड़ की ओर नहीं, मैंने जाता हूँ जोर करके जगह पर. ठीक है, स्वर्गदूत ने बोला ठीक है, तू जाने का समय था, उस शहर को और किसी को कुछ नहीं करेंगे. verse 23 onwards. But as they were running, लोथ का पति ने क्या कर दिया. So my question I will ask, even including to me,
In this Christian life, as Jesus said, I am living a life like salt, which is giving taste about my faith to many people. इस मसीह जीवन में मैं और आप ऐसे एक नमक की समान है क्या, और नमक से सब लोगों को मेरी विश्वास का खुशबू या टेस्ट मिल रहा है, या अभी भी पुराना जिंदगी को छोड़ने के बाद भी वो पुराना जिंदगी को देखकर खड़े होकर क्या बना था, एक पिलर ऑफ ओ नमक का खंबा है हिंदी में, ओ नमक के खंबा के समान है, कि दोनों नमक है, बोथ आर सॉल्ट। इधर तो नमक का पिलर है, वहां नमक करके बोला। सो द क्वेश्चन, हम इसमें कौन सी अनुभव में हैं? और एक बार बताता हूं, am I living a life like the life of Lot's wife? क्या बन गया था? Do you think that your life is like a salt which is giving taste to many people, or do you think that your life is like a salt, a pillar of salt which is standing in the same place, no taste, no use, but everyone will look at you and they will say, see, he departed by saying the name of Christ, by saying the name of Lord Jesus Christ. Even today, he is standing in the same place by looking into his old. I hope you understand the question. क्या हमको देखकर लोग ऐसा बोल रहा है, क्या ये नमक की समान है? हाँ, इनकी वजह से हमको जीवन में आशीर्वाद या टेस्ट मिल रहा है। क्या हम और नमक की खंबा की समान है क्या? निकलने के बाद, आज्ञा को सुनने के बाद भी फिर भी पीछे मुड़कर देखकर, कुछ चीजों को नहीं छोड़ना चाहता हूं करके पीछे मुड़कर देखकर जहां देखा वहां ही खड़े होने वाला एक अवस्था में है क्या? But Jesus said to his disciple, you are the salt of the world. लूत का पत्नी भी दुनिया में नमक तो था, है नहीं? नमक का क्या बन गई? Either use, there is one use. People will look at her and say, एक बार विश्वास की आगे कदम उठाने के बाद, एक बार परमेश्वर की वचन सुनने के बाद पीछे मुड़कर देखने का आदत था, क्या बन गया? अभी भी जहां है वहां ही, there is no development. समझ आया नहीं है? उम्मीद करता हूं इस बातों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। मैं बहुत चिल्लाकर, बहुत आवाज करके नहीं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा से हम वचन पढ़ के वचन के अंदर से कहानी बताता हूँ। लेकिन लूत ने बोला था, मैंने पहाड़ की ओर नहीं जाना चाहता हूँ। वचन आगे पढ़ के देखना, he had to go to the hill. He had to go to the hill. जोर करके जगह पे जाऊं करके बोल के निकला था, बीच में one more unexpected departure. कौन जिंदगी जीवन से चलेगी? Why? So he understood. Read verse 30. Now Lot went up of Zoar and lived in the hills with his two daughters. कहाँ जाकर रहना शुरू कर दिया? Where समुद्र में जाने के लिए बोला था? Hills. कहाँ गया था? फिर भी कहाँ आया था? फिर भी कौन जीवन से कम हो गया? So sometimes if we take our own decisions and if you think this is the best for you, what will happen? The first thing you have to understand the calling which you have from above. Abraham understood the calling which he had, which he heard from above. So he thought, even if I go to a desert place, my God will sustain me. I have no fear. But Lot thought, if I leave Abraham, uncle होता है ना, nephew मतलब मामा, uncle. So it's an uncle. So if I leave him, if I start my journey alone, if I do not choose a place where already development took place, I have to do more hard work and my life will be zero. Then what happened to Lot? A time came into his life. He had to leave everything, even if he don't want to leave. That happened in his life or not? Is the fact that you got from the verse. ये सच आपको वचन से मिला या मैं बोलने से मिला? वहाँ वचन में लिखा है
स्वर्गदूत ने इनको, इनका परिवार को सीज किया, कब्जा कर गांव से बाहर, शहर से बाहर निकल के बोला तुम लोग पहाड़ी की ओर जाना। उन्होंने बोला नहीं, मैं जोर की ओर जाता हूँ। परमेश्वर ने मान लिया तू जाओ, नो प्रॉब्लम। बट इन बिटवीन बीवी ने पीछे मुड़कर देखा, अरे हमारा घर बैल बकरियां कहाँ पड़ा है, कहाँ पड़ा है? थोड़ी समय में क्या होने वाला है? थोड़ी समय में वो क्या होने वाला था और क्या हो गया? She also became the pillar of salt. Yeah, pillar of salt. And 27. And Abraham went early in the morning to the place where he had stood before the Lord, and he looked down towards Sodom and Gomorrah and toward the land of valley, and he looked and behold the smoke of the land went up like the smoke of the furnace. So Abraham ने जाकर देखा तो सोदम गोमोरा से क्या आ रहा है? That's why I said Abraham was very concerned about Lot. अब्राहम के बारे में, लोत के बारे में अब्राहम बहुत चिंता रखते थे। इसे जाकर देखा तो सोदम गोमोरा में क्या होने वाला है। Then verse 30. And one more thing I just want to say. If you move your tent to a place where you are not supposed to stay, the things that is taking place in that place, that will affect your life. मैं छोटी शब्दों में इसका कहानी सारांश बताता हूँ। उसके बाद लोत के जीवन में क्या हो गया? जो गलती परमेश्वर ने आंख से बुझाया था, वही गलती लूत का बेटी लोगों से जन्म हो गया। And they became Moab and Ammonites, and they even started fighting with the people of God Israel. इतिहास में हम पढ़ा है। यही मोआब का लोग, यही अमोनाइट्स का लोग, लूत का कहां से? लूत का बेटी लोग गलती करने से जन्म हुआ। ये लोग आने वाले दिनों में बहुत बड़ा गलती करते हुए जिया। So where am I moving my tent? That is a question from the life of Lot. Am I moving my tent to a place where God showed me to move, or am I moving my tent to a place where I saw my blessings are there? क्या मैं मेरा तंबू को परमेश्वर दिखाए हुए जमीन पर लेके जा रहा हूँ, या मैं मेरे इस घर को मुझको जो जगह पर पसंद आया वहां जा रहा हूँ? Question is very clear. Question is very. And the third one, coming back to the main title which we are discussing, which kind of salt experience we have in our life? Am I living a life like a salt experience of the wife of Lot, or the real salt which is giving taste to others? क्या मैं मेरा जिंदगी लूत का पत्नी का और नमक की अनुभव में जी रहा हूँ? क्या लूत का पत्नी का नमक की अनुभव क्या है? कुछ चीजों को छोड़ने के लिए बोला था, छोड़ने के लिए मन अभी भी जहां है वहां ही। So if you think there is no improvement in your spiritual life, consider somewhere आप और मैं जो बातों पर परमेश्वर ने छोड़ने के लिए बोला था, अभी भी नहीं छोड़ा है। अभी भी उसको खींच कर पीछे मुड़कर देख कर जहां है वहां ही। शंभू, आर यू हियर? डू यू हैव एनी फियर इन योर ईयर? नहीं, वो मिशन काम करता है सारे से पूछा। So if I live like an experience of the salt which Jesus spoke to his disciple, that will give taste to everyone. That salt is there everywhere in your life. That salt is needed in every part of everyone's life. क्या वो नमक को देखकर या क्या हमको देखकर लोग ऐसा बोल रहा है? क्या यीशु मसीह का नाम लेकर निकला था, अभी भी कहां खड़ा था वहां ही है? या लोग बोल रहे हैं क्या यीशु मसीह का नाम लेकर निकला था? हर व्यक्ति के जीवन में इनका जरूरत है। भाई ऐसा कैसा हो गया? इनका जीवन में बहुत फेलियर्स था, लेकिन he is in need of everyone. Which kind of salty experience you are holding in your life? I think the question is very clear. Or which kind of salty experience am I
holding in my life. Whenever someone is thinking about you, are they thinking that from where he started, he is still there only? Or they are thinking that from where he started, he have gone much far and far, and his departure was very good, and I am sure he will land in a good place where his master wants him to land. लोत ने लैंड किया था जहां लैंड नहीं. So in this plot, in this story, in this history, my characters were Terah and his 3 sons. One passed away, and I talked about one, and his name changed to Abraham. His wife was not that much well in faith, and sometimes because of her he had to go through many suffocation, many kind of suffering, and later he even married someone else and he got one more son, and God gave him promise again and again. He was in the presence of God, but his nephew went away from the presence of God. So wherever you go and read, someone is traveling to east. He or she is going away from God. इसे क्या था? पश्चिम, पूर्व. कहां पे भी आप लोग पुराने नियम में जाकर कोई एक व्यक्ति पूर्व की ओर सफर शुरू किया करके पढ़ा तो his life is ending with a sad moment. This I am giving to you. I said the sentence. If you have any doubt, you can read the Bible and you can understand. You can read the Bible and so what was the title which we are meditating upon? An unexpected departure, which made Lot to understand, which made Abraham to understand, which made Lot's होने वाला son-in-law to understand. I took a wrong decision. I took a wrong decision where I am feeling like I am trapped and I need a savior to save me. If you have that heart, for sure God will come and meet you in your house and He will seize you, because you can't go by yourself. You are trapped over there. You have many belonging to you that is there in that city. That's why Lot ko, Parivar ko, God seized them and He kept them out of the village, because you can't overcome this. Am I making sense? These kind of situations are there in our life also. वैसे ही संदर्भ हमारे जीवन में भी है. हम बाहर आना चाहता है लेकिन but if you have a heart like Lot, sitting there in the main gate and thinking, Lord, अंदर जो बातें हो रहा है वो मैं पसंद नहीं करने वाला बात नहीं है, मैं पसंद करने वाला बातें नहीं है. If you have that heart, for sure His angels will meet you and they will seize you, they will protect you, but there will be a condition. Do not turn, and if you turn back, your testimony will lead many to fear God. How? यीशु मसीह का नाम लेके निकला था. यीशु मसीह का काम उनकी मर्जी के अनुसार नहीं किया. देखो, जहां शुरू किया वहां आज भी खड़ा है, एक खंबा के समान. या मत्ती अध्याय 5 का 13 में यीशु मसीह के चेलों लोगों के समान है. Whenever you preach, wherever you preach, you need Jesus Christ and His disciples to explain. I am just talking from the context. हम कहाँ पे भी प्रचार किया तो किसके बारे में प्रचार करता है? यीशु मसीह और उनका चेले लोग. But when you look into the life of Lot's wife, from where she started with faith, but somewhere she turned back and looked from where I departed. And क्या हो गया? So this is the small and this is the big message that God gave to me when I read Matthew chapter 5 verse 13. I hope now the verse is giving a different meaning to you. Which kind of salty experience you and I hold as long as we live in on this earth? किस तरीका का नमक की अनुभव मेरा जीवन में और आपका जीवन में है? क्या वो लूत की पत्नी के समान
जो बातें छोड़ के निकलने का था, निकलने के बाद पीछे मुड़ने का अनुभव में है, या सब कुछ छोड़कर उसकी क्रूस लेकर निकला। अभी जो है सब कुछ उन्होंने दिया करके बात पर मैं और आप है, हम परख कर देखने का समय है। We have to examine by basing our life on this question. And if you think my faith life is the same as I begin, it is your turn to ask God, Lord, I want to move forward. I am standing on the same place I was before, and this should not happen in my life. I want to move forward, and there is none can help you. That is one truth I can say. When Lot was in the same kind of situation, कोई इंसान मदद करने के लिए आया? Only God can do. So, what I believe in my spiritual life, and if I want to grow in my spiritual life, I should take a decision. Not we should take a decision. I should take a decision. Lord, whatever happens, I want to move forward. I don't want to stand in the same place, in a shameful situation where everyone is looking at me and saying, कोई काम का नहीं है, मसीह का नाम लेकर तो घुमा है. Lord, I want to become like that salt, which is टूटा 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 है. टूटा तो क्या होगा? हजारों लोगों को फायदा है. नमक की खंबा जैसा है तो कोई फायदा है? Am I making sense? If you are living a life just like a pillar of salt, you are not useful for anyone. क्यों? कोई और पूरा का पूरा सामान लेकर खाली में डालेंगे क्या? क्योंकि वो नमक की खंबा है. और are we living like the salt? पाउडर जैसा होता है. Even though टूटा है, फिर भी हजारों लोगों को काम का है, हजारों जगह पर उसको उपयोग किया. So if you are living a life like the pillar of salt, ask God, God, मुझे क्या करना? तोड़कर क्या करना? हजारों लोगों को काम आने वाला जैसा बनाना. Lord, broke me into pieces. Then only I will be useful like the salt, which is there in every place, in everyone's life. I hope this meditation makes sense in your life and in my life also. And let's read Matthew chapter 5 verse 13 in a louder way, then we will conclude with the word of prayer. You are the salt of the earth. But if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? Yes, you can and I can restore the saltiness. परमेश्वर से बोलने से परमेश्वर मुझे आप जो जगह पर मैं वैसे ही खड़ा हूँ वैसा नहीं, मेरा जगह बदलने का जरूरत है, इंसान लोग बदलने का जरूरत है, मेरा यूज भी बदलने का जरूरत है. Lord, give me and fill me with your talent and make me as a useful vessel, a very useful thing in the life of many people. That should be my life. I'm reading the second part. It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under the people's feet. That situation should not come in my life. Let's close our eyes and look to the Lord in prayer. I hope today's meditation is making sense in your life. मैं उम्मीद करता हूँ आज का इस क्लास, इसका आज का वचन का मेडिटेशन, how many of you understood? So it is very clear, even though the story is all about salt and the life of Abraham and Lot, and our title was an unexpected. Just imagine which kind of departure you have and where you are now and where you are going to land. Hallelujah. आइए हम बात करेंगे. शंभू आगे आकर इस वचन की आधार पर प्रार्थना करके आशीर्वाद के साथ हमें भेजेगा.